Mishra, teachers, students, and our honored guest, Shri Kailash Chandraji and other dignitaries. It gives immense pleasure to welcome Mr. Kailash Chandraji, a renowned Hindi translator for mythologists devotees to Dalai Lama. He has also translated important texts from English and Tibetan into Hindi, making spiritual teachings accessible for a wider number of audience. First, I would like to invite two of our school captains to welcome Mr. Kailash Ji with the white Tibetan scarf. To give a warm welcome speech. Felici che a me ci sono costruito un ciola, sono già mi stanno fuori, e avevo un milò di comandela, c'è un bel pusha che lasci ciò, e mi porta c'è un che sta nei convincio, e non ci vedo una batta, Dharamsala deve quindi del ben canti, e come una baione, e santi test lesci e lì, sono le che vorrei, non ci sono this Chimanda Shore, in Angola, rich in Kuchme, but here, and you need to down. Again, they have a push you do any Sham, Shangishe, Injino, Mashu, first of all, very good afternoon to all of you, and it's on behalf of all the students and the staff of STS Kadapattur, would like to welcome our guests, or you can say the speaker of the day, Shri Kailash Ji, and the organizer, welfare officer of Ponda Cholsu, and other dignitaries, and also members of Tibet Museum from Dharamsala. So, welcome you all here in STS Kadapattur. Before going to the event, I would like to give a brief biography of Sir Kailash Ji, though the secretary of Ponda Cholsu is also ready with the detail of biography. So from our side, we have brief detail. Sir Kailash Ji was born in a small village in Uttar Pradesh, and he was just like you, right? And right now he is highly qualified scholar and the dedicated official Hindi translator for His Holiness the Dalai Lama. And to my surprise, he knows many languages, like the language of Pali, Sanskrit, Tibetan, English, and like it's quite surprising. Now when we have question answer session, there won't be any language bar. If you want to speak in Tibetan, you can do that. If you want to speak in Hindi, you can do that. And if you are fluent in Sanskrit, you can do that. So this is the biggest problem of Harvard Buddhism. Every day around like 5 times we face this kind of situation. So sorry for the inconvenience. So sir studied Tibetan language and grammar at College of Higher Tibetan Studies and Institute of Buddhist Dialectic, IBD. He holds master's degree from Agra University as well as from Delhi University. Today, alongside his important work as the Dalai Lama's translator during the teaching and public appearance, he continues his advanced Buddhist studies, pursuing a 16-year-long Vishet degree and PhD in Buddhist study from Delhi University. Sir Kailash Ji's life is a testament to the power of dedication and commitment to serving through the profound wisdom of Buddhist teaching. Kailash Ji's biography reflects a journey from humble beginning to a position of influence in the world of Tibetan Buddhism, where he served a bridge between culture and language. So today, apart from sir, let me introduce our school, a brief introduction of our school. Our school has a long history of 55 years. It was first established in 1970 at a place called Chakraka, and in 1980 it was relocated here in Kadapattur.
and with the name SFF School. And in 1994, from SFF, the school was transferred to CTSA and renamed the school CTSA. And in the recent year 2022, that's CTSA has shifted to Sambuddha Tibetan School Society. Now we have new name called Sambuddha Tibetan School, Harbarpur. So as you can see, we have different backgrounds of students, right? Not only Tibetan students, we have Indian local also. We have around 305 students. Out of them, 195 are local Indian, and then rest of 110 are Tibetan students. In the same way, among the staff also, among 38 staff, 29 are Tibetan and 9 are local Indian. So this school is a big example of unity under diversity is what I can say. And today we all are overjoyed and looking forward to listen on sea learning and the core commitment of His Holiness the Dalai Lama. As a gesture of gratitude on His Holiness the Dalai Lama's 90th year, all of our activities are themed around the core commitment of His Holiness the Dalai Lama. May it be the morning talk by the students or Friday teachers talk or the school inter-house competition. Everything is being themed around core commitment of His Holiness the Dalai Lama. And each class, from class 6 to 12, we have 2 minimum sea learning periods in a week. So I would say that we have the basic of sea learning and core commitment, and I request all the students also to come up with a question or doubt, whatever you have during the session, because after Sir's talk, we will be having question answer session. Is it clear with everyone? Right? As I said, like language no bar, you have like whole freedom to ask question in any language, because most of the time you said like, ma'am, I want to ask the question, but I can't speak Hindi properly, I can't speak English properly. But now today you have no language problem. Whatever question you have, like just ask Sir, right? And thank you so much, Sir. We are really looking forward to listen on two of our topic which we have touched in our school from the person who is very near to His Holiness the Dalai Lama. And thank you so much for all the great work you are doing. And on behalf of everyone, really grateful of all of you, Sir, and then organizing committee for making this event possible. Thank you so much, Sir. Thank you, organizer also, especially the welfare officer, Mr. Dalila. Thank you, everyone. Good afternoon, everyone. Respected principal, esteemed faculty members, esteemed staff members, and dear students. On behalf of the Ponta Chesum Welfare Settlement Office, I extend a warm welcome to all of you gathered here for today's special talk session. Before I proceed, allow me to share a brief note about today's event. This year, we are observing the Year of Compassion, a special initiative that is a part of the year-long celebration for marking the 90th birthday anniversary of His Holiness the 14th Dalai Lama. Through this program, we aim to convey and embody His Holiness the Dalai Lama's core message of love, compassion, and warm-heartedness, universal values that transcends boundaries of caste, religion, and nationality. On this note, I would like to share a message from His Holiness the Dalai Lama, one that he often shares whenever he meets people. Be kind whenever possible, it is always possible. Love and compassion are necessities, not luxuries. Without them, humanity cannot survive. Now, without further ado, it is my great
pleasure to introduce today's distinguished speaker, Sri Kailash Chandra Buddhaji, who has been serving as the official Hindi translator for His Holiness the Dalai Lama since 2012. Although Principal has briefly introduced Barai and so on. In addition to this, he has also translated for numerous other highly revered Tibetan and other spiritual masters. He completed his undergraduate studies at Dr. B.R. Ambedkar University, Agra in 2014, followed by a Master of Arts from the same university in 2017. In addition, he holds several academic degrees including MA in Madhyamika Buddhist philosophy, a Master of Arts in Buddhist Studies from the University of Delhi, which is the Great Master of Buddhist Philosophy. He is currently pursuing a PhD at the University of Delhi alongside a remediation degree in Tibetan Buddhism and Philosophy from the Institute of Buddhist Studies. A prestigious Tibetan monastic qualification, which is a PhD degree requiring 18 to 20 years of rigorous study. He has published several books including Dhyan, Sadhana, Sad Bindu, Vishwas Ek Avan and many others. He actively participates in international academic and spiritual forums such as the International Conference on World Peace in Seoul, South Korea, and Future Buddhism in India in Bangkok, Thailand. In addition to this, he teaches Buddhist philosophy to university students through the Gurukul program organized by the FRU Delhi. With that, I would like to invite Sri Kailash Chandra Buddhaji to deliver a talk on today's special topic, social, emotional and ethical learning. Please welcome, sir. नमस्कार। टच द लेक। लंच नहीं मिला क्या? नमस्कार। अब कुछ खाया लग रहा है। तथेरिंग दिला संबोटा टिबेटन स्कूल आचार्य पे गाँव जो अनि लोचिला दा अनि गेगे लोटो चेबे निगा साने गुंजिन केंगले चौदा ठुंगी लासो बच्चा ला थांबो मा समडी दा टच दिले शोई चिंतन के तो कौन तो ग्यारह मिनट में खुद बंदा ओके सॉरी मैं हिंदी में बोलूँगा क्योंकि ज़्यादातर इंडियन है यहाँ पर। तो संबोटा टिबेटन स्कूल हार्वर्डपुर के आदरणीय प्रिंसिपल सहित विद्यालय के समस्त अध्यापकगण, छात्र छात्राओं और सेटलमेंट के अधिकारीगण, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। टच द लेक। आज यहाँ आकर के बहुत प्रसन्नता हुई। मैं 3 तारीख को आपके पोंटा साहिब में पहुँचा तो परम पावन जी के जो 4 प्रतिज्ञाएं हैं, प्रतिबद्धताएं हैं, उस पर संवाद देने हेतु आने का अवसर प्राप्त हुआ। इस कड़ी में आपके हार्वर्ड स्कूल में भी एक संवाद रखा जाए, ऐसा अनुरोध प्राप्त हुआ। तो आज यहाँ मैं इस उद्देश्य के साथ आया हूँ। आज से पहले अलग 7 जगह पर टॉक देने का अवसर प्राप्त हुआ, छात्र छात्राओं को, टीचर्स को। और सबसे पहले जो हमारे भारतीय स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, एक बात स्पष्ट करना देना चाहता हूँ कि ये जो संवाद की सीरीज या श्रृंखला किसी धर्म विशेष की व्याख्या करने के लिए नहीं है, बौद्ध धर्म की व्याख्या करने के लिए या फिर दलाई लामा जी के गुणगान करने के लिए नहीं है। परम पावन दलाई लामा जी मूल रूप से तिब्बत के हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन परम पावन दलाई लामा जी के अगर कार्यों को अगर देखेंगे
तो वो सबके दलाई लामा हैं। विश्व में सबके दलाई लामा हैं। जितने तिब्बती लोगों के दलाई लामा हैं उतने ही हम भारतीयों के भी दलाई लामा हैं। और यहाँ जो बच्चे, स्थानीय बच्चे जो बैठे हैं, आप लोग तो और स्वाभिमान आपको होना चाहिए, गर्व महसूस करना चाहिए कि विश्व की महान हस्ती आपके इस प्रदेश में बहुत बार पधारे हैं। और सबसे पहले तिब्बत से जब आए थे तो आपके मसूरी में रहे थे। ये आप लोगों को गर्व करना चाहिए, प्राउड फील करना चाहिए कि दलाई लामा जी को हमारे लोगों ने भी रहने की व्यवस्था दी। उसके साथ साथ हिमाचल में भी परम पावन दलाई लामा जी आज पिछले 65-70 वर्षों में रह रहे हैं। तो हम सब भारतीयों के लिए एक गौरव की बात है, सम्मान की बात है। वैसे परम पावन जी की जो कमिटमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इसको हम लोग सामान्य लोग उसको संक्षिप्त कर पाएँ या समझ पाएँ आसान नहीं होता है। परम पावन दलाई लामा जी का जन्म 6 जुलाई 1935 को तिब्बत के एक सुदूर गांव में हुआ था। सुदूर मतलब बहुत रिमोट विलेज में। आप लोग को निश्चित रूप से पता है क्योंकि आप लोग समोटा स्कूल में पढ़ते हैं तिब्बती बच्चों के साथ, और अध्यापक लोग समय समय पर बताते रहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको जानकारी होगी। 1935 के बाद जब वो 2.5 वर्ष की अवस्था में उनको 14वें दलाई लामा जी के रूप में पहचान मिली, पहचाना गया। उसके बाद जो फॉर्मल एजुकेशंस उन्होंने वो प्राप्त की। जब परम पावन दलाई लामा जी 16 वर्ष के थे तब उन्होंने देश की राजनीतिक सत्ता और आध्यात्मिक दोनों को स्वीकार किया, दोनों के प्रमुख बने। अब 16 वर्ष की अवस्था में यहाँ कोई बच्चा है जो 16 वर्ष का हो? कितने लोग हैं 16 ईयर ओल्ड हैं? 16 ईयर्स ओल्ड में 10 लोग से ज़्यादा नहीं होंगे। तो 16 वर्ष की उम्र का बच्चा, जैसे कि अभी ये भाई हाथ उठा रहा है, इसके ऊपर पूरे देश की जिम्मेदारी आ जाए, भारत का राष्ट्रपति बना दिया जाए, प्रधानमंत्री अगर बना दिया जाए तो कितना मुश्किल होगा। अभी तो खुद अपने कपड़े भी धुलना नहीं पता है, एक बार की चाय भी नहीं बना पाओगे, खाना बनाना तो दूर की बात। 60 लाख तिब्बती भाई बहनों की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ली। सोचो, कल्पना करो, सिर्फ 16 वर्ष की अवस्था। ऐसे कैसे रहे होंगे कि पूरे लोगों के सुख दुख कैसे व्यवस्था बनाने हैं। जैसे हमारे परिवार में हमारे पिताजी जिम्मेदारी उठाते हैं हम लोगों की, राशन खरीदना हो, कपड़ा खरीदना हो, व्यवस्था करना हो, सब हमारे पिताजी करते हैं। उसी प्रकार से तिब्बत में परम पावन दलाई लामा जी 60 लाख लोगों के माँ बाप के रूप में वो बने। सब लोगों का उन्होंने ख्याल रखा। जब 24 वर्ष के हुए तब उनको भारत में आना पड़ा, निर्वासन में आना पड़ा। आपके मसूरी में पधारे 24 वर्ष की अवस्था में। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बैकग्राउंड आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक व्यक्ति ने छोटे से जीवन काल में कितना ज़्यादा संघर्ष किया है। परम पावन दलाई लामा जी के जीवनी को हम जैसे लोग बता पाना संभव नहीं होता। अभी परिचय में बता रहे थे कि मैंने ये अध्ययन किया, वो किया। ठीक है, कुछ न कुछ अध्ययन किया, लेकिन परम पावन जी के ज्ञान को 1% भी समझ पाना हमारे जैसे व्यक्ति के बस में नहीं है। परम पावन जी को ओशन ऑफ विजडम, ज्ञान का सागर कहा जाता है। सागर कितना बड़ा होता है, हम लोग सागर में घुस कर के सागर को या समुद्र को नाप नहीं सकते हैं। उसी प्रकार से दलाई लामा जी के ज्ञान को हम लोग नाप नहीं सकते हैं कि उतना कितनी गहराई है। तो ऐसे परम पावन जी के द्वारा दी गई व्यवस्था में आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उनके स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। गर्व महसूस करना चाहिए। मैं इसलिए गर्व महसूस करता हूं कि आज से 20 साल पहले परम पावन जी के
बनाए हुए जो सिस्टम है धर्मशाला में अध्ययन करने की व्यवस्था है, एक बौद्ध होने के नाते मैं भी बुद्धिज़्म को जानना चाह रहा था कि आखिर को कैसी व्यवस्था है, कैसे पढ़ा जाए। हम भारत के लोग कहते हैं कि हम लोग विश्व गुरु थे, पहले रहे होंगे, लेकिन अब हालत जो है हम सब जानते हैं किस तरह से है। कोई भी ऐसा संस्थान नहीं है जहाँ पर लंबे समय तक रह कर के भारत में परंपरा को समझा जा सके। तो उसके लिए मैं धर्मशाला 2005 में पहुंचने के बाद लगातार अध्ययन किया। तो उसकी वजह से आज आपके सामने अगर मैं कुछ कह पा रहा हूँ, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ परम पावन दलाई लामा जी और हमारे तिब्बती भाई बहनों के मेहनत के द्वारा बनाए गए ऐसे संस्थान हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारे बच्चों को भी, हमारे भारतीय बच्चों को भी आज बहुत खुशी हुई। पहला ऐसा स्कूल है जहाँ पर हमारे भारतीय बच्चे भी आपके साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि परम पावन जी के इस प्रतिबद्धता को समझने के लिए, उनके ज्ञान को समझने के लिए पूरा तो हम नहीं समझ सकते, लेकिन दो पक्षों को समझना पड़ेगा, टू साइड्स हम लोगों को समझना पड़ेगा। पहली जो हमारी ट्रेडिशनल व्यवस्था है, परंपरागत पक्ष, और दूसरा जो आधुनिक पक्ष। जब तक हम ट्रेडिशनल और मॉडर्न को नहीं समझेंगे तब तक परम पावन जी को समझ पाना आसान नहीं है। परम पावन दलाई लामा जी ने इसको समझा कि परंपरागत तरीके से अगर व्याख्या की जाती है तो मनुष्य को कहा जाता है कि वृद्धि करने के बाद, विकसित होने से अविकसित की तरफ आता है, डेवलप्ड से कमी होते होते अनडेवलप्ड तरफ आ जाता है। प्राचीन समय में भारत में युग हुआ करते थे, जैसे कि नाम सुना होगा, बच्चों लोगों ने सुना कि नहीं, सत्ययुग, त्रेता युग, कलयुग, द्वापर। अभी कौन से युग में है? कलयुग। क्या मतलब होता है मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा। सत्ययुग मतलब सत्य का युग, द कल्पा और एज ऑफ ट्रुथ। उस समय हर जगह सत्य का बोलबाला था, कोई चोरी नहीं करता था, कोई व्यभिचार नहीं करता था, हिंसा नहीं करता था, कोई भी झूठ नहीं बोलता था। ऐसे समय को सत्य युग, सत्य का युग, एज ऑफ ट्रुथ कहा जाता था। ये किसके साथ होता? मनुष्यों के साथ। ये समाज की बात थी, सोसाइटी की बात है। सोसाइटी में कोई भी झूठ बोलने वाला नहीं होता था। फिर दूसरा, अगर उसमें से एक में कमी आ जाती थी, चार में से, जैसे कि हिंसा करना, किसी को मारना, चोरी करना, दूसरा व्यभिचार करना, सेक्सुअल मिसकंडक्ट, और चौथा झूठ बोलना, उसमें से एक में कमी आती थी। एक अगर कोई नियम टूट जाता था तो उसमें से कितने बचते थे? 3। जब 3 बचते थे, 3 सत्य बच जाते थे, तो उसको त्रेता युग कहा जाता था। उसमें से एक और कमी आ जाती थी, 2 रह जाते थे, तब द्वापर कहा जाता था। उसमें से जब चारों खत्म हो जाते थे, चारों के चारों चीज़ें खत्म हो जाती हैं, तो उसको कलयुग कहा जाता है। तो आज हम लोग यहाँ पर हैं। चोरी, हिंसा, व्यभिचार, झूठ, ये सारे के सारे हैं कि नहीं? आप बच्चे लोग मान रहे हैं कि नहीं? तो इसलिए हम लोग कलयुग में हैं। परम पावन जी ने देखा कि ये चीज़ें जो प्राचीन समय में ये व्यवस्था होती थी कि लोग किस तरह से रह सकते थे, इसमें कमी आ रही है। इस कमी की वजह से उन्होंने जो है पहचान की कि जो कि लोगों के सोच विचार में बहुत ज़्यादा कमी आ रही है, और इस कमी की वजह से लोगों में जो गिरावट है उसको हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर ग्रंथों के अनुसार, परंपरा के अनुसार अगर हम लोग देखें तो उसमें 5 जो विकृति या कसाय या काशाय, डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेशन, डिजनरेशंस, ये 5 प्रकार के डिजनरेशन और कमियां आ गई। उसमें से सबसे पहली जो एक प्रकार से विकृति, वो आयु में विकृति, एज में। पहले अगर आप लोग देखोगे, प्राचीन अगर पढ़ोगे, तो लोग पहले 500 साल तक, 200 साल तक जीवित रहते थे।
हमारे माँ बाप बताते ना कि वो 200 साल 300 साल तक ज़िंदा रहते थे, लेकिन आज हम लोग 60 वर्ष तक रह पाएँ कि न रह पाएँ इसमें भी दुविधा है। एज में कमी आई है। हम लोगों ने ऐसे कार्य किए हैं कि हम लोगों की उम्र में कटौती होती चली जा रही है। दूसरा जो विकार है वो विकार कौन सा? दृष्टि, सोच में तावा निंगमा छे निंगमा निंगमा। तो इसमें से दूसरा क्या? दृष्टि। दृष्टि विकृति हो गई। दृष्टि मतलब सोच समझ हमारी विकृत हो गई। हम लोग कितना संकुचित सोचने लगे हैं, बहुत नैरो माइंडेड, स्वार्थी हो चुके हैं हम लोग, सोच में कमी आ चुकी है। ये कलयुग की एक पहचान है, आज के समय में ये पहचान है। तीसरा क्लेश। क्लेश मतलब इग्नोरेंस। तो हमारे अंदर बहुत सारे क्लेश हैं, जैसे कि गुस्सा। हमारे अंदर क्या है? बुराई, गुस्सा हमारे अंदर है। दूसरे से ईर्ष्या करना हमारे अंदर है। द्वेष हमारे अंदर है, हम सब के अंदर है। छोटे से लेकर के बड़े सब में ये कमी आई है, लगातार ये कमियाँ। और फिर चौथा समय को लेकर के। समय दुई मामत तिब्बती में कहा जाता है कि काल में, परिस्थितियों में, समय में एक प्रकार से कलुषितता आ गई है। आज हम लोग देखें कि समय हम लोग कितना बर्बाद करते हैं, उपयोग न करके दुरुपयोग ज़्यादा करते हैं। हम अपने समय को 24 घंटे को देखें तो दुरुपयोग बहुत ज़्यादा हम लोग करते हैं। या तो गप मारने में करेंगे, या तो मोबाइल में करेंगे, या कुछ करने के लिए करेंगे। तो इसमें एक मनुष्य में एक कमी आ रही है, समय के अनुसार भी खराब होता चला जा रहा है। तभी तो हम लोग कहते हैं कि समय खराब चल रहा है, लेकिन समय खराब कैसे चल रहा है इसको हमको समझना है। पाँचवा सत्व मतलब जीवधारी। हम सभी जीवधारी, तो जीवधारियों में भी एक दूसरे के प्रति झगड़ा, इसकी सारी आज समाज में देखने को मिल रही है। तो ग्रंथों के अनुसार या फिर ट्रेडिशनल एजुकेशन में या ट्रेडिशनल या एंशियंट उस हिसाब से देखेंगे तो ये 5 विकृतियाँ देखने को मिलती हैं। जब परम पावन जी ने देखा कि इसके जो परिणाम क्या हैं, ये विकृतियाँ होने से, बुराइयाँ होने से इसके रिजल्ट्स क्या होते हैं, फिर जब रिजल्ट के बारे में देखा तो 5 प्रकार के रिजल्ट इससे निकलते हैं, परिणाम इससे निकलते हैं। तो मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा समय के हिसाब से। तो 5 प्रकार के जो कमी है उसमें से हम लोग देखेंगे कि लोगों में, पहला कि लोगों की जनसंख्या में कमी आ रही है। जनसंख्या में कमी या बढ़ोतरी, पॉपुलेशन में कमी या बढ़ोतरी। मैं इसलिए कह रहा हूँ, हम लोग को ये नहीं देखना कि दुनिया की बहुत पॉपुलेशन है, 8 अरब से ज़्यादा लोग हैं, वो नहीं सोचना है। जानवरों की तुलना में हम लोग तो कुछ भी नहीं हैं। 8 अरब के आसपास लोग, इससे शायद आपके हर्बर्टपुर में उससे ज़्यादा छोटे छोटे एनिमल्स होंगे, उसके तुलना में तो हम लोग कुछ भी नहीं हैं। तो ये क्यों कहा परम पावन? इसलिए कहा कि कहीं अगर किसी कम्युनिटी की अगर संख्या कम होती है तो जिसकी ज़्यादा संख्या होती है वो उसको परेशान करते हैं, या फिर जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वो नहीं हो पाता है। तो कहीं भी जो आबादी है वो उसमें बराबरी का हिस्सा होना चाहिए, सबका अधिकार एक जैसा होना चाहिए। तो जो ज़्यादा हो जाता है बलवान, वो निम्न वाला या कमज़ोर वाले को सताता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या आज देखिए कहीं न कहीं हमारे आसपास भी होते हैं, जो लोग कम संख्या में उनको ज़्यादा संख्या वाले लोग परेशान करते रहते हैं। ये एक बड़ी समस्या। दूसरी समस्या को अगर हम लोग देखेंगे परम पावन जी के हिसाब से, तो फिर इसको कैसे समझें कि पर्यावरण की समस्या में हम लोग कितने ज़्यादा दुखी हैं, कितने ज़्यादा परेशान हैं। परसों या तरसों की बात है, आपके उत्तराखंड में हाल ही में बहुत बड़ी आपदा हुई है। कितने लोग मर गए अभी कोई पता नहीं है। ये कैसे हुआ? अब हम लोग कहेंगे ये तो प्राकृतिक है, ये तो हो सकता है, नेचुरल। ऐसा नहीं। जिस नदी या जिस जगह पर हम लोगों ने मकान बनाए हैं वो पहले नदी हुआ करती थी, नदी होती थी। उस नदी में जाकर के हम लोगों ने अपना अधिकार कर लिया, अपने घर बना लिए, उसको हमने खोद डाला है। विकास के नाम पर ज़मीन को हमने खोद दिया है। इतना ज़्यादा खुदाई की है कि वो ज़मीन धीरे 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 जा कर के ऐसे नष्ट होने के कगार पर हो गई।
इतने हम लोगों ने जाकर के पेड़ पौधे काटे हैं कि कहीं कहीं बारिश नहीं होती है। आपका उत्तराखंड हिमाचल तो हरा भरा, बाकी की जगह पर देखिए बारिश नहीं होती है। क्यों? पर्यावरण को हमने नुकसान किया है। तो एक एक न जा कर के कुल मिलाकर के मैं अब सीधा उस पर आना चाहता हूँ कि परम पावन जी की जो प्रतिबद्धताएं हैं, जो कमिटमेंट्स हैं, वो किस प्रकार से हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं। इसके अलावा युद्ध की समस्या आज अगर आप देखोगे तो दुनिया में युद्ध की कितनी ज़्यादा समस्या है। अभी कितने अच्छी तरह से हम लोग यहाँ पर बैठ कर सुन रहे हैं। इसी के साथ साथ इसी समय इराक में, गाज़ा में और जगह पर लोग अपने जीवन को बचाने के लिए तरस रहे हैं। इसी समय अभी 3:30 बजे हम लोग यहाँ हॉल में अच्छी तरह से बातचीत सुन रहे हैं, एक दूसरे को प्रयास कर रहे हैं, और ऐसे ही समय में ऐसे ही आप जैसे बच्चे कितने लोग मारे जा रहे हैं। और ये युद्ध प्लानिंग के तहत होते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ प्लानिंग के तहत। जो अमीर राष्ट्र हैं वो पैसे बनाने के चक्कर में हमेशा युद्ध करते हैं। वो चाहे तो एक दिन में युद्ध को रोका जा सकता है, लेकिन जितना लंबा युद्ध चलेगा उतनी आमदनी होगी, उतने हथियार बिकेंगे। पहले जब युद्ध होते थे, गांव में झगड़ा होते थे, तो लेकर के लाठी डंडे से होते थे, ज़्यादा सर फूटता था, मुश्किल से कोई इंसान मरता था। आज लोग बंदूक लेकर के आ गए, एटम बम बन गए, जिससे कि एक बटन दबाने से पूरे देश के देश नष्ट हो सकते हैं। एक एटम बम यहाँ डाल दिया जाए तो पूरा हार्वर्ड पोर्ट कहाँ चला गया पता नहीं लगेगा। ये किसने बनाया? हम मनुष्य ने बनाया हुआ है। युद्ध जो प्लानिंग के तहत जो हम लोग आज बनाए हुए, सब हम लोगों ने बनाए हुए, तो उसको परम पावन जी ने देखा कि इस दुनिया में इतनी बड़ी समस्या है और इसका समाधान किया जा सकता है। ज़्यादातर समस्याएं मनुष्य के द्वारा बनाई हुई हैं और हम मनुष्य इसको समाप्त कर सकते हैं। कहीं बाहर से कोई समाप्त करने नहीं आएगा। अगर भगवान से कहो कि भगवान आप जाकर ये युद्ध समाप्त कर दोगे, भगवान तो हम लोग को उल्टा गाली देंगे, कहेंगे युद्ध मैंने थोड़ा नहीं शुरू किया है, हथियार मैंने थोड़ा नहीं बनाए, हथियार तो आपने बनाया, आप लोग इसको संभालो। हमने तो आप लोगों को बना के भेजा है, आप जाकर के भाईचारे के साथ रहो, प्रेम के साथ, मैत्री के साथ रहो। आप तो झगड़ा करने आए हो यहाँ पर, तो वो हमको क्या करेगा? गाली देगा, 2 थप्पड़ मार के भगा देगा भगवान। क्यों बहन? सही बता रहा हूँ कि हमने नहीं बनाया, आप लोगों ने बनाया। इसलिए ये सब मानव के द्वारा, हम लोगों के द्वारा बने हुई चीज़ें हैं। तो इनको कैसे हम दूर कर सकते हैं? इसके लिए खंडे डोगर दी तद ये जो समस्या हैं, ये सारी की सारी समस्याएं परम पावन जी ने अपने जीवन काल में देखा, और उनमें से सबसे पहली आप लोग को स्लाइड्स को दिखाना चाहता हूं, जिससे कि आप थोड़ा सा और अच्छी तरह से समझ सकेंगे। इसमें क्या दिख रहा है आप लोगों को? क्या दिखाई दे रहा है? बताओ, तेज आवाज़ में बताओ। और क्या दिखा? ये जो ट्रक है यूएसए न्यूयॉर्क का फोटो है। ये सैनिटेशन असला कचरा गाड़ी है, और कचरे गाड़ी के ऊपर बोर्ड क्या लगा है? पीस ऑफ माइंड। ये क्या दिखा रहा है कि जो हमारा माइंड है इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका ये टारगेट रहा होगा। हमारा माइंड बहुत अच्छा है, लेकिन हमने इसमें एंगर, हेटर, जेलस, धर्म, जाति, रंग, इसको कचरे के रूप में अपने दिमाग में भर लिया है। ये कचरा ही तो है। गुस्सा कचरा है कि फ्रूट है? कचरा है ना। इससे कोई लाभ तो होगा नहीं। इसको हम लोगों ने अपने मन में भर लिया। जिस प्रकार से ट्रक में गार्बेज भरा जाता है, उस प्रकार से न करके हमने अपने मन में गार्बेज भर लिया। हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग क्या चाहते हैं बताइए? हैं? क्या चाहते हैं? पीस। कितने लोग चाहते हैं कि पीस चाहते हैं हम लोग? शांति चाहने वाले लोग कितने हैं? हाथ उठाएं। सुख चाहने वाले कितने लोग चाहते हैं कि? वेरी गुड। हम सभी चाहते हैं कि हमको सुख मिले। हम सभी चाहते हैं कि हमको सुख मिले। ये नैसर्गिक बात है, नेचुरल बात है कि कोई भी इंसान है या जानवर है वो कहेगा मुझे खुशी मिलेगी।
तसल्ली मिले। आप जैसे चाह रहे हैं हम भी चाह रहे हैं। दूसरी बात पूछता हूँ, कितने दिन तक के लिए आपको खुशी चाहिए? खुशी चाहिए, ट्रुथ। कितने दिन के लिए? हमेशा। देखो कितने लालची है ना, थोड़े दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए चाह रहे हैं। लालच इतना ज़्यादा चाह रहे हैं, और ये लालच अच्छा है। ये जो आपका लालच है ये अच्छा वाला है। हमेशा के लिए हम लोग खुशी चाह रहे हैं, लेकिन उस खुशी को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब हम अपने अंदर इस ट्रक में जो कचरा भरा गया, उसी प्रकार से हमारा जो मन है, ब्रेन है, उसमें हम कचरा न भरें। अगर हम कचरा नहीं भरेंगे तो लंबे समय के लिए हैप्पीनेस को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ये ट्रूथ है। तो इसलिए हम लोग को क्या नहीं करना, अपने मन में कचरा नहीं भरना है। अब परम पावन दलाई लामा ने जो 5 प्रतिबद्धताएं बताई, उसमें से सबसे पहले जो मानव मूल्यों का संवर्धन, प्रमोशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़, प्रमोशन ऑफ रिलीजियस हार्मोनी, प्रिजर्वेशन ऑफ टिबेटन आर्ट एंड कल्चर, और चौथा रिवाइवल ऑफ एंशिएंट विजडम। इसमें से मैं आपको एक एक करके बताने की कोशिश करूँगा। पहला जो परम पावन जी का संदेश है, वो कहते हैं कि हमारे अंदर इस समाज में या जो कलुषित जो हो चुके हैं, जो समय ऐसा खराब आया है, इसमें करुणा, मैत्री, भाईचारा ये कम होता चला जा रहा है। और मैं एक मनुष्य हूँ, एज ए ह्यूमन बीइंग मेरी एक जिम्मेदारी बनती है कि सारी मानवता को मैं अच्छी चीज़ें बता सकूं, सिखा सकूं। तो परम पावन जी हमेशा करुणा की बात करते हैं, कंपैशन की। और आप लोगों ने बोर्ड भी देखा होगा, परम पावन दलाई लामा जी का स्लोगन क्या है? माई रिलीजन इज़ वेरी सिंपल। क्या है? माई रिलीजन इज़ वेरी सिंपल, दैट इज़ कंपैशन। मेरा धर्म बहुत आसान है। मैं एक सिंपल मंक हूँ और मेरा धर्म जो है बहुत आसान है। वो क्या है? करुणा। दूसरा वो कहते हैं कि अगर आप सुखी रहना चाहते हो तब भी आप करुणा का अभ्यास कीजिए, और दूसरों को भी आप सुखी रखना चाहते हो तब भी करुणा का अभ्यास कीजिए। तो करुणा इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम सब के लिए जीवन के लाभदायक है। ये क्या मानव मूल्य हमारे अंदर है। जो छोटा बच्चा होता है उसके अंदर भी मूल्य है, वही है। जो बड़े पीछे बैठे हुए हैं उनके अंदर भी वही मूल्य है। लेकिन धीरे धीरे मैं और मेरा की वजह से, मेरा राष्ट्र, मेरा घर, मेरा स्कूल, मेरा परिवार, मैं, इसकी वजह से हम लोगों ने कंपैशन को दूर कर दिया। उसकी जगह पर, कंपैशन की जगह पर एंगर लेकर आ गए हैं। जहाँ क्षमा करना चाहिए लोगों को, वहाँ हम लोगों को दूर करते चले जा रहे हैं। जहाँ टॉलरेंस होना चाहिए वहाँ इंटॉलरेंस होता चला जा रहा है। अब पता नहीं ये शब्द टॉलरेंस और इंटॉलरेंस कैसे आ गया है। अंग्रेजी में टॉलरेंस, इंटॉलरेंस, हिंदी में सहिष्णुता, असहिष्णुता। अगर कोई व्यक्ति धार्मिक है वो कभी भी इंटॉलरेंट, असहिष्णु नहीं हो सकता। हम सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी धर्म को मानते हैं, और फिर भी अगर इंटॉलरेंस, असहिष्णु हो जाए तो आई थिंक हम लोग धार्मिक व्यक्ति भी नहीं हैं। धर्म हमेशा एकता की बात सिखाता है। तो ये शब्द हैं, इसमें कमी आती चली जा रही है, इसमें लगातार कमी आ रही है। दूसरा, हमारे अंदर जो सेटिस्फैक्शन की बात है, वो सेटिस्फैक्शन कम होता चला जा रहा है, संतोष हटता जा रहा है। संतोष न होने की वजह से आज हम दुनिया में इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इतना ज़्यादा विनाश कर रहे हैं। युद्ध क्यों हो रहे हैं? असंतोष की वजह से। युद्ध कब होते हैं? हम जब दूसरे की चीज़ों को अधिकार अपने अधीन करना चाहते हैं। असंतोष तब आता है जब हम लोग यूजर न रह करके कंज्यूमर बन जाते हैं, उपयोगकर्ता न रह करके उपभोगकर्ता बन जाते हैं, तब जाकर के असंतोष आता है, युद्ध आते हैं। तो इसलिए परम पावन जी कह रहे हैं कि इन चीज़ों को छोड़ना है। और सबसे महत्वपूर्ण सेल्फ डिसिप्लिन। क्या कहा जाता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आत्म अनुशासन सफलता की कुंजी है। पढ़ा है आपने? आत्म अनुशासन सफलता की कुंजी है। अगर आपने पहले नहीं सुना हो तो आज सुन लो कि सेल्फ डिसिप्लिन जो है सक्सेस का एक चाबी जैसा है। अगर आप डिसिप्लिन होंगे तो आप निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं। अगर डिसिप्लिन नहीं होंगे तो आपको टीचर कितना भी अच्छा पढ़ाए, क्या भी कुछ न करे, आप कभी नहीं सीख सकते। तो सफल होने के लिए सबसे पहला पायदान है कि हम लोग
सेल्फ डिसिप्लिन रहें, आत्म जो है एक प्रकार से अनुशासन रहें। ये परम पावन दलाई लामा जी कहते हैं। और सभी मनुष्य समान हैं, हमें अंतर क्यों करना है किसी के लिए कि ये फलाना है, वो दूसरा है, वो कहाँ से आया, ऐसा ये किसने किया है? हम लोगों ने किया ना। अच्छा, आप जब बच्चे लोग ये बताना, जब आप लोग छोटे थे, प्राइमरी में पढ़ते थे, 1-2 क्लास में, तब आप सबके साथ खेलते धुलते थे ना, किसी के टिफ़िन में खा लेते थे, किसी के भी साथ चले जाते थे, दोस्त के, अपने क्लासमेट के साथ। फिर धीरे धीरे जब हम स्कूल से उसमें चले जाते हैं तो बाद में क्या कहा जाता है, ये फलानी जाति से है, ये उस जाति से है, ये शर्मा जी है, ये वर्मा जी है, मेरा टाइटल ये है, उसका टाइटल ये है। ऐसे करते हैं ना, ऐसा करा जाता है ना। फिर जाएंगे, ये अमीर है, ये गरीब है, वो जूता ऐसा पहन रहा है, हमारा जूता कमज़ोर है। फिर और थोड़ा बड़े जाएंगे तो स्टेटस को लेकर के आ जाते हैं कि नहीं, ये हमारा स्टेटस ऐसा होना चाहिए, हम अमीर हैं तो हमारे पास गाड़ी होनी चाहिए। ये कहाँ से आया हुआ है? छोटे बच्चे पे से तो नहीं था ना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा में कमी है। कहीं ना कहीं हम जो शिक्षा दे रहे हैं वो केवल बाहरी रूप से दिखाने के लिए दे रहे हैं। इनर वैल्यू, कंपैशन, टॉलरेंस, एक दूसरे को माफ़ करना, सेटिस्फैक्शन, ये तो हम लोग गायब हो चुका है। सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? ये गायब हो चुका है हमारे अंदर से। और ये कहीं किताब से नहीं आता, ये हमारे परिवार से, हमारे समाज से, हमारे जो है भाई बहन दोस्तों से आता, कहीं बाहर से नहीं आता। इसको हमको बढ़ाने की आवश्यकता है। और इस पर काम करने वाले एकमात्र मैं कह सकता हूँ पिछले 20 सालों में मैं देखा है कि दलाई लामा जी हैं, जिनके पास हर वर्ग का, हर पंथ परंपरा का लोग आकर के खुश होकर के जाता है। ये सब हम लोगों को स्वीकार करने की ज़रूरत है। इसमें कोई धर्म की बात नहीं है, कोई तिब्बत की बात नहीं है, कोई अलग देश की बात नहीं। ये सब हम लोगों के लिए ज़रूरत है। अगर प्यास लगेगी तो पहले क्या करोगे? पानी पियोगे ना। ये तो नहीं देखा भाई ये किसने पाइपलाइन बिछाई है, चेक करोगे क्या? सच बताना, कहाँ से पाइपलाइन बिछाई है ये तो चेक नहीं करोगे। मिस्त्री कहाँ से आया था, उसने कैसे कपड़े पहने थे, ये करोगे क्या? तो हम लोग पहले क्या करेंगे? पानी पिएंगे। हमें हमारी ज़रूरत पानी की है। पाइप कहाँ से आया, कौन सा कपड़ा, कौन सा जाति का था, वो न करके अब क्या हो रहा है, किसने बनाया, अरे वो उसका मत पी लेना, ये हो जाओगे। ये अंतर करने वाले सिर्फ और सिर्फ मनुष्य हैं। ये पुरानी बातें, इसको हम लोगों को ज़रूरत नहीं है समाज में। ये समाज में विभेद करता है। तो परम पावन जी इस बात को लेकर के जो मानव मूल्य हैं उसको हमको बढ़ाने की आवश्यकता है, उसको आगे लेने की आवश्यकता है, केयर की आवश्यकता है। हम लोग जब छोटे होते हैं या छोटे बच्चे को देखो तो सबसे पहले जब बच्चा पैदा होने के बाद रोता है ना, वो क्यों रोता है? कुछ आइडिया है आपको? हम सभी लोग रोए कि नहीं रोए? हम सभी लोग रोए, अभी भी रोते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर के। लेकिन जब छोटा बच्चा होता है, जब रोता है, क्यों रोता है पता है आपको? किसी को आइडिया है? वो इस तरह के लेक्चर सुनने के लिए रो रहा है कि वहाँ ले चलो, या हमको कहीं बड़ी दुकान पे शॉपिंग मॉल में जाना है इसलिए रो रहा है क्या? या गंगोत्री के दर्शन करने जाना है इसलिए रो रहा है क्या? क्यों रो रहा है? क्या चाहिए उसको? आपके आ गया, वो शब्दों में लेकर आइए, क्या कहना चाह रहे हो? क्यों रोता है बच्चा? क्या चाहिए? पहले बताया था, हैं? यस, आप कुछ कह रहे बच्ची? नहीं, अभी ये सामने वाली बेटी। हाँ, माँ चाहिए ना। बच्चे को क्या चाहिए? प्रेम चाहिए, केयर चाहिए। जैसे ही माँ उसको उठा लेती है तो क्या होता है? शांत हो जाता है। उसको कोई प्रेम बच्चे को नहीं है कि माँ के प्रति लगाओ, बच्चे को कोई आइडिया नहीं है। अभी तो बच्चे का ब्रेन भी डेवलप नहीं हुआ है, धीरे धीरे जब डेवलप होता है। और जब हम लोग 3 साल 4 साल के थे तब माँ है नानी के घर जाने के लिए तैयार होती थी तो हम लोग को कितनी दिक्कत होती थी। रोते थे ना कि माँ छोड़ के न चले जाए। तुम नहीं रोते थे? तो रोते थे माँ छोड़ के न चली जाए, माँ के साथ जाना चाहते थे। हो सकता है 1-2 बहन ऐसे ना हो, लेकिन 99% लोग हम लोग माँ के साथ जाना चाहते थे। क्यों जाना चाहते थे? क्योंकि माँ हमको प्रॉपर प्रोटेक्शन दे सकती है,
हमको खाना दे सकती है, भोजन दे सकती है, कपड़ा दे सकती है, प्यार दे सकती है। कि उस समय हम लोगों को तो खाना भी बनाना नहीं आता है, खाना भी नहीं बना सकते थे, कपड़े भी नहीं धुल पाते थे, कुछ भी नहीं कर पाते थे। तो हम लोग कितने ज़्यादा उसके प्रेम पर आश्रित होते थे। अभी भी हैं, अभी भी ऐसा ही होता है। लेकिन धीरे धीरे जब 15, 16, 20 साल के जब हो जाते हैं, वही प्यार धीरे धीरे कम होता है। क्यों? इसलिए होता है, तब हम लोग क्या कहते हैं, तुमने मेरे लिए क्या किया? कहते हैं कि नहीं कहते? तुमने मेरे लिए क्या ही किया। ऐसे भी ताना मारते हैं ना माँ बाप को। ये क्या है? ये हमारे आदत, या फिर कहा जाए कि जो इनर वैल्यू है उसमें कमी को दिखाता है। जिस माँ ने जन्म दिया हो, जिस माँ ने हमको अपने खुद हमारी पेशाब में लेट करके अपने हमको सूखा में सुखाया हो, ऐसी माँ को हम लोग कहते क्या कर दिया आपने? तो ये हमारी नैतिकता में कमी आ रही है, ये हमारे अंदर के जो मूल्य हैं इसमें कमी आ रही है। और जो बच्चा जितना ज़्यादा माँ से दूर रहेगा, वो भविष्य में जाकर के उतना ही ज़्यादा गुस्सैल होगा, उतना ही ज़्यादा वो मतलब उसको असुरक्षा महसूस होगी, इनसिक्योरिटी फील होगी कि कहीं कुछ वैसा ना हो जाए। ये ट्रुथ है, ये हम सबका नेचर जो है, ह्यूमन बीइंग का नेचर क्या है? हैप्पीनेस, लविंग काइंडनेस, दूसरों से प्रेम करना है। कभी भी हमारा जैसे कि दूसरों के साथ लड़ने का नेचर नहीं रहा है। बचपन में हम लोग लड़ते, वो क्या कहते थे, हमेशा खेलने के लिए जाते थे ना, एक दूसरे के साथ खेलना, ये सब होने के बाद हम लोग खुश हो जाते थे। लेकिन बड़े होते होते जैसे समाज में आकर के शिक्षा को प्राप्त करते हैं आजकल की, तो उसमें कहीं ना कहीं कमी आ रही है। तो परम पावन जी बेचारे कहीं ना कहीं कोई शिक्षा में कमी है, वो इनर वैल्यू को बढ़ाने वाली शिक्षा में कमी आ रही है। उसको इनर वैल्यू को बढ़ाने की ज़रूरत है। इसलिए एंशिएंट विजडम और मॉडर्न विजडम दोनों को अगर साथ लेकर के आएंगे तो हम लोग एक कंप्लीट इंसान बन सकते हैं। एंशिएंट विजडम में कि किस प्रकार से हम क्षमा कर सकें, कैसे हम कंपैशन को कर सकें, किस प्रकार से हम दूसरों को एक प्रकार से भाईचारे के साथ रह सकें। लेकिन मॉडर्न में कि हम लोग फिजिकली कैसे डेवलपमेंट कर सकें। तो फिजिकल एंड इंटरनल दोनों जब तक हम लोग अच्छे से नहीं होंगे, तब तक हम कंप्लीट इंसान नहीं बन सकते। तब तक हमारे अंदर एंगर रहेगा, तब तक हम ऐसे युद्ध करते रहेंगे। तो परम पावन जी यही कहते हैं कि हम सबको मानव मूल्यों को समझने की जरूरत है। इसमें देखो कितना अच्छा आप लोग कोट पढ़िए, क्या लिखा है? माइंड इज नॉट डेस्टिन्ड टू कीप एंगर, hatred and jealous, but it is the treasure box to keep love, happiness and sweet memories। समझ गए ना? हमारा माइंड ऐसा नहीं है कि इसमें ये डस्टबिन नहीं है, कुछ भी डालते जाओ, कचरा डालते जाओ। इसमें केयरिंग रखनी है, अच्छी यादें रखनी है, इसके अंदर प्यार रखना है इसके अंदर। दूसरा देखो, हर दिन ये प्रतिदिन अपने आप को याद दिलाना कि हम हर दिन क्या कर रहे हैं। आई एम इन चार्ज ऑफ माई हैप्पीनेस। दूसरी हमारे खुश, कभी भी ऐसा मौका मत दो कि हमारी खुशी को कोई दूसरा छीन सके। हम अपनी खुशी को अपने साथ रखने की जरूरत है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, एम्पावरिंग पॉजिटिव इमोशंस, कंट्रोल योर इमोशंस और बी कंज्यूम्ड बाय देम। अब देखो पहले फोटो में क्या दिखा रहा है, शेर चीते फोटो में दिखाए गए हैं। अगर आप अपने एंगर को, इमोशंस का एंगर को कंट्रोल नहीं करोगे तो एंगर हमको खा जाएगी। गुस्से को अगर कंट्रोल नहीं करोगे तो गुस्सा हमको क्या करेगा, हमको मार देगा। गुस्से में आकर के लोग सुसाइड कर लेते हैं, कहीं ट्रेन के नीचे दब के मर जाते हैं, एक्सीडेंट कर लेते हैं गुस्से में आकर के। अगर गुस्सा को कंट्रोल नहीं करोगे तो हमको नष्ट कर देगा। और देखो यहाँ इसके साथ साथ कितनी अच्छी लाइन लिखी है, दो बुजुर्ग लोगों के फोटो छपे हुए ना। ट्रू लव रिक्वायर्स फेथ। हम लोग प्रेम की बातें करते हैं, उसके लिए क्या होना चाहिए, फेथ होना चाहिए एक दूसरे के प्रति। ट्रस्ट एंड लॉयल्टी, विश्वास हो, वफादारी होनी चाहिए। नेक्स्ट, नॉट चॉकलेट, फ्लावर्स एंड एक्सपेंसिव गिफ्ट्स। अगर सच्चा प्यार करना है तो चॉकलेट दे के नहीं होगा, समझे? चॉकलेट दे दिया, उधर से आई लव यू बोल दिया, इधर से भी बोल दिया, हो गया, उससे काम नहीं चलेगा। ट्रस्ट चाहिए, ट्रस्ट। चॉकलेट खा के ख़त्म हो जाएगा थोड़ी देर बाद, फिर क्या करोगे उसके बाद? दोबारा तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा क्या पता। लेकिन आपके पास अगर ट्रस्ट है, विश्वास है एक दूसरे का, तो जीवन भर देखो ऐसे बुजुर्ग होने के बाद भी साथ साथ चलेंगे। ऐसा ट्रस्ट होना चाहिए। ये हमारे मानव मूल्य हैं। दूसरा जो प्रमोशन ऑफ रिलीजियस हारमोनी,
कि हम सभी को जो धर्म अलग अलग मानते हैं, सब में अच्छी बात है, खूबसूरती है, उसको हमको स्वीकार करना चाहिए। सब धर्म, सब भगवान बताते हैं कि हमको अच्छा बनना है, प्रेम का जो है विकास करना है, सभी साथ ऐसे चलते हैं। तो हम लोगों को धार्मिक होने के साथ साथ जो धार्मिक लीडर्स हैं उन सभी को कोशिश करनी चाहिए कि सबके साथ प्रेम से, मैत्री के साथ रहें। तो इसमें मैं पहले ही इसके बारे में व्याख्या कर चुका हूँ, ज़्यादा इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। तो सभी धर्मों में अलग अलग परम वो होते हैं, दर्शन होते हैं, फिलोसफिकल एस्पेक्ट होते हैं और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स होते हैं। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सबके एक जैसे होते हैं, सभी को इसके साथ साथ चलने की ज़रूरत है। अपने आप ही कह रहा है कि बंद हो जाओ तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को हम लोग को स्वीकार करने चाहिए। नेक्स्ट, इसमें स्क्रीन में शायद दिखेगा नहीं, कि शब्दों से अधिक काम बोलता है। कहने का मतलब है कि हम लोग हमेशा बात करते हैं, बात करने से ज़्यादा अच्छा होगा कि प्रैक्टिकली अगर हम लोग उपयोग करें, अपने जीवन में उसको लेकर के आएँ तो वो ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। केवल और केवल भाषण देने से उसे कोई लाभ नहीं हो सकता। तो हम सभी का प्रयास है कि दलाई लामा जी जो कह रहे हैं, कि दलाई लामा जी बोलने के अलावा उन्होंने दुनिया के लिए करके दिखाया। केवल ऐसा नहीं कि बोलते चले जा रहे हैं, आज लाखों करोड़ों लोगों को इस दुनिया में लाभ होता है उनके इस बात को सुन करके, उनके टीचिंग्स को सुन करके। जिस प्रकार की वो टीचिंग देते हैं उसी प्रकार से अपने जीवन में भी वो धारण करते हैं। तो इसलिए हम लोग को भी दलाई लामा जी की तरह उनके वचनों को सुनना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, उन पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है। हम सभी परम पावन दलाई लामा जैसे बन सकते हैं, ऐसा नहीं बन सकते हैं। वो भी छोटे बालक के रूप में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने क्या किया, मेहनत किया, मेहनत करके, प्रयास करके आज दुनिया में उनको उनकी पहचान जो बनी हुई है, ये एक दिन में नहीं आ गया कि एक दिन में संभव हो गया हो। तो इसलिए परम पावन दलाई लामा जी की जो विशेषता है, जो गुण हैं, वो हमको हमेशा याद रखना चाहिए, उस पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसमें क्या लिखा, शब्दों से अधिक काम बोलता है। पहले आप पढ़िए, द वर्ल्ड इज चेंज्ड बाय योर एग्जाम्पल नॉट बाय योर ओपिनियन। दुनिया को बदलना है तो उदाहरण बन करके बदलो। आपके भाषण से दुनिया बदलने वाली नहीं है, एग्जाम्पल बनिए। दलाई लामा जी जैसा हमको एग्जाम्पल बनना है, बदलाव लाना है। दलाई लामा जी ने कहा है कि तिब्बत के 60 लाख लोगों को बिल्कुल झगड़ा नहीं करना है। तो आज चीन के अधीन रहने के बावजूद भी एक भी चीनी की हत्या नहीं की, एक भी की हत्या किसी की नहीं करनी है। प्रेम से, काइंडनेस से, लविंग से रहना, क्योंकि वो भी तो इंसान हैं। उनको मारने से अगर हमको क्या लाभ मिलेगा, फिर हम भी वैसे ही हो जाएंगे। वैसा होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए अपने शब्दों से नहीं, किससे करो, एक्शन से बदलाव करने की ज़रूरत है। तो बीच वाला, डू द राइट थिंग इवन व्हेन नो वन इज लुकिंग। अच्छे काम करिए, कोई न देखे तब भी आप अच्छे काम करिए। हम लोग दिखावा के लिए काम ज़्यादा करते हैं ना, कि हमारा कोई प्रशंसा करेगा, दिखावा करेगा, तभी ज़्यादा अच्छे काम करते हैं, वैसे नहीं करते हैं। तो इसलिए अगर आप अच्छे काम करें, कोई देखे ना देखे, अच्छे काम करिए। अगले में देखो, पढ़िए आप लोग, दान करना है तो गरीब को रोटी दान करे इंसान। क्या कहा, दान करना है तो गरीब को रोटी दान करे इंसान, आखिर कब तक मंदिर मस्जिद को अमीर बनाता रहेगा। हम लोग गरीब पास में हो उसको रोटी नहीं देते ना, उसको ऐसे ही छोड़ करके फिर जा कर के भगवान को चढ़ा के आ जाते। भगवान खाएगा नहीं बेचारा, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वास्तव में जो गरीब है उसको अगर हम लोग देखो, उसके चेहरे पर खुशी आ जाएगी, उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। पता नहीं बेचारा कब का भूखा हो सकता है। हो सकता है कि हम लोग लकी है कि ऐसे अच्छा जीवन माँ परिवार में मिला है, पता नहीं हम लोग भी कहीं हो सकते थे ऐसे। तो इसलिए इतना हो सके कोशिश करो लोगों को मदद करने के लिए। ये आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, तिब्बत की आर्ट एंड कल्चर। इसमें संक्षेप में यही कि तिब्बत की जो कला संस्कृति है, और ख़ास करके जो एनवायरनमेंट परम पावन दलाई लामा जी उसको रख रखाव करने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि तिब्बत का अगर एनवायरनमेंट ख़राब होगा तो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे पड़ेगा। तिब्बत से आने वाली ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश, अरुणाचल, हर जगह जो जाती है, उस पर देखो लाखों लोग का जीवन डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए तिब्बत का पर्यावरण ठीक करना है, तिब्बत के जो कला संस्कृति आर्ट एंड कल्चर
वो मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं एक तिब्बती व्यक्ति हूँ, ऐसा दलाई लामा जी कहते हैं। इस फोटो को बताओ ये कहाँ का हो सकता है? कितने लोगों ने देखा है? कहाँ का है? दोर्जिदेन है? कहाँ का है? बताओ, हाथ उठा के बताओ, कोई बताएगा? पता नहीं। ये नालंदा का फोटो है। नालंदा 5th सेंचुरी में स्टार्ट हुई एक यूनिवर्सिटी थी जो लगभग 800 ईयर्स तक भारत में रही। एक एजुकेशन का एपिसेंटर था ये। दुनिया के हर देश से पढ़ने वाले, मैथ पढ़ने वाले, साइंस पढ़ने वाले, ज्योतिष पढ़ने वाले, बुद्धिस्ट फिलॉसफी पढ़ने वाले, दुनिया के अलग अलग देशों से लोग आते थे। हुएनसांग फायांग का नाम सुना है आप लोगों ने? चाइना से आए हुए नालंदा में पढ़ाई किए थे। इत्सांग वहाँ से आए हुए पढ़ाई किए थे। जीरो किसने दिया? आर्यभट्ट ने यहाँ से पढ़ाई की थी। अब ये खंडर बचा है। तो परम पावन दलाई लामा कहते हैं यहाँ जो ज्ञान था, यहाँ जो नॉलेज था, और ख़ास करके जो हमारी मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, बुद्धिस्ट साइकोलॉजी, जिससे कि मन को ठीक किया जा सकता है, एंगर को कम किया जा सकता है, क्रोध को कम किया जा सकता है, तो उसको हमको रिवाइव करना है। किसी धर्म को रिवाइव नहीं करना है। जो प्राचीन ज्ञान है जिससे कि हम अपने माइंड को समझ सकें, माइंड का जो मैप है उसको समझ सकें, एंगर कैसे आता है, इसको हम लोग कैसे ख़त्म कर सकते हैं, इसको हम समझ सकें, तो इसके लिए परम पावन जी दलाई लामा जी जोर देते हैं कि आप उसमें जा कर के इसको रिवाइव करना है, इसको पढ़ना है, उसको समझना है। और ऐसी कैपेसिटी केवल और केवल भारत में है, भारत के लोगों में है। भारत के लोग प्राचीन एंशिएंट विजडम एंड मॉडर्न विजडम को दोनों को साथ लेकर के जा सकते हैं। और आचार्य विनोबा भावे कहते थे कि जिस दिन एंशिएंट विजडम, एंशिएंट साइंस एंड मॉडर्न साइंस जब साथ आकर के चलेंगे तो वो दुनिया बहुत अच्छी होगी। तो एंशिएंट विजडम मतलब कि किस प्रकार से हम अपने जो मन को ठीक कर सकें, एंगर को कम कैसे कर सकें उसको। और मॉडर्न साइंस का मतलब जो फिजिकल कंफर्ट हमको चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हम सबको कोई गाड़ी नहीं चाहिए, कपड़ा नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है, वो चाहिए। लेकिन उस सबसे महत्वपूर्ण हमारा मन होता है। मन को ठीक करने के लिए इंटरनल जो फैक्टर्स हैं उसको ठीक करने के लिए ऐसी एजुकेशन की आवश्यकता है। तो ये परम पावन दलाई लामा जी हमेशा हमसे कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक सी लर्निंग में यहाँ पर आपको नहीं बताऊँगा, क्योंकि ये कुछ प्रमुख किताबें आप लोग पढ़ सकेंगे। सी लर्निंग के बारे में बहुत ज़्यादा आप लोग जानते हैं, मुझे अभी पता लगा है। तो कुल मिलाकर के ये मैं आपको कुछ डेटा देना चाहूँगा कि सी लर्निंग, सेकुलर, एथिकल, इमोशनल लर्निंग आप लोगों ने पढ़े होंगे, समझे होंगे, और ये भी एक आज समय की एक आवश्यकता है। उसकी ज़रूरत के हिसाब से ये बनाए गए। 2019 में ये ग्लोबली लॉन्च हुआ था, आप लोगों के टीचर्स ने बताए थे। आज ये 79 कंट्री में इम्प्लीमेंटेड है, आपके स्कूल में भी है, ऐसे 79 कंट्रीज़ में। और 20 करोड़ स्टूडेंट्स इसके जो इनरोल किए हुए हैं उसमें छात्र छात्राएँ 20 करोड़, बहुत बड़ी संख्या है 6 साल में। 1,10,000 से ज़्यादा स्कूल्स ने इसको अडॉप्ट किया और 25 से अधिक लैंग्वेज में अलग अलग ये ट्रांसलेटेड है। 50 लाख से अधिक टीचर्स हैं, 5 लाख से, माफ़ कीजिए, 5 लाख से अधिक टीचर्स हैं इसमें, और इसमें ज़्यादातर पढ़ने वाले, सीखने वाले इंडियन स्टूडेंट्स हैं। तो ये परम पावन दलाई लामा जी का एक बहुत बड़ा योगदान है विश्व के लिए। इसलिए हम लोगों को परम पावन जी की बातों को समझने की, जानने की ज़रूरत है, और कुछ नहीं है। इसलिए नहीं समझना है कि विश्व के वो एक दलाई लामा जी हैं, धार्मिक गुरु हैं, बिल्कुल नहीं। जो जिसके लिए वो धार्मिक होगा उसके लिए होंगे, लेकिन हम एक आम इंसान होने के लिए उनका दुनिया के लिए योगदान क्या है, तो उनकी 4-5 बातों को हम लोग अगर ध्यान में रखेंगे तो हमारे जीवन के लिए लाभदायक होगा, परिवार के लिए होगा, विश्व के लिए होगा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। अगर किसी के पास कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर, एज यू आर पॉलीलिंगुअल, आपने बहुत सारी भाषाएं सीखी हैं, तो उसका स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा हुआ होगा। मतलब कैसे आपने सीखा, कैसे उन चीज़ों को याद रखा? अलग अलग भाषाओं के जो वर्ड्स होते हैं वो आपस में भी बहुत कंफ्यूजिंग कर सकते हैं, तो वो कैसे आपका एक्सपीरियंस है? अब पता नहीं कितना। हेलो हेलो
ऐसा कह सकते हैं कि कुछ होगा ऐसा, मैं किसी भी लैंग्वेज को बहुत जल्दी सीख लेता हूँ, अपना कुछ होगा, मेरा पुराना कर्म होगा। तो कुल मिलाकर टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप किसी भी अध्ययन करने के लिए, स्टडी को लिए, आपका जो समय का जो मैनेजमेंट है उसको अगर आप ठीक से लेकर के चलेंगे तो आप कुछ भी सीख सकते हैं। जब मैं 7th क्लास में, 6th क्लास में शायद रहा हूँगा, तब मैं श्रीलंकन लोगों के साथ रहता था। तो उनके साथ रहकर मैं बहुत फ्लुएंट सिंगली बोलता था श्रीलंकन लैंग्वेज। कभी कभी वहाँ से लोग आते थे तो मुझे भेज देते थे उनके साथ कि इनको लेके जाओ और ये सब बता देंगे, तो उनके साथ में सीखता था। और मैंने ज़्यादातर सुन करके, लोगों के साथ रह करके, आप जिस कम्युनिटी में रहोगे, अगर किसी लैंग्वेज के सीखना चाहते तो उस कम्युनिटी में रहो, आप बहुत जल्दी पकड़ सकते हो। शब्दों को एक प्रकार से लिख करके जब बोलना आसान होता है, फिर उसको एक प्रकार से पढ़ना और लिखना कठिन होता है। उसके लिए क्या करना चाहिए, मेरा अपना स्टाइल होता था कि मैं जो भी एक दिन में पढ़ाया जाता था, चाहे दिन में 100 शब्द बताए गए हों, 200 बताए गए हों, जब तक ये रट नहीं लेता था, याद नहीं कर लेता था, तो रात के 2 बज जाए 3 बज जाए उससे फ़र्क नहीं होता था। पूरा करके हर दिन का, अगर हम एक दिन पिछड़ेंगे तो दूसरा दिन, तीसरा दिन पिछड़ते जाएंगे। ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। और कोरियन लैंग्वेज भी जब मेरे बहुत सारे मित्र थे, फिर मैं साउथ कोरिया गया, उनके साथ सीखा, इंटरनेट से सीखा। तो पिछले कोई 10-12 साल से ज़्यादा संपर्क नहीं रहा है, तो मैं काफ़ी भूल गया हूँ, लेकिन समझ हमको काफ़ी अच्छी आती है। दूसरी लैंग्वेज हमारे टिबेटन लैंग्वेज मेरी सेकंड लैंग्वेज है। पहले सेकंड अंग्रेजी को मानता था, तो अंग्रेजी में उतनी सहजता नहीं दिखती जितने की टिबेटन लैंग्वेज के साथ में दिखती है। तो मेरी सेकंड लैंग्वेज, उसके साथ भी मैं टिबेटन हायर कॉलेज में स्टूडेंट के साथ रहा, उनके साथ पढ़ा, उनके साथ बातचीत किया। फिर उसके बाद लगातार आज जब मैं धर्मशाला में होता हूँ तो लगभग 80% टिबेटन लैंग्वेज का यूज होता है। मैं हमेशा कहता हूँ स्टूडेंट से कि आप 20 लैंग्वेज सीखो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपनी मातृभाषा को कभी नहीं भूलना चाहिए। अपनी जो मातृभाषा, मूल भाषा है, उसको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। मेरा टच नहीं रहा है पिछले 20 सालों से कि अलग से कहीं पढ़ने को मिला, ऐसा नहीं। अंग्रेजी भी मैंने पिकअप करना, चाहे जो कोरियन भी पिकअप करना, सिंगल पिकअप करना, विधिवत तरीके से, कोई ट्रेनिंग ऐसा नहीं था। तो आप किस में ज़्यादा यूज टू होंगे, किस में आप ज़्यादा बातचीत करेंगे, तो वो आपके लिए आसान हो जाती है। तो ये मेरा अपना अनुभव रहा, इस प्रकार से मैंने प्रयास किया है। तो हालांकि मैं बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ, लेकिन इस प्रकार से रहा है। नेक्स्ट। तो translated chair the pay unique profession the conceptual translated chair this table is there लासो तुझे ना तिब्बती बोलना। अब आप लोग को नुकसान होगा, इन लोग को दोनों भाषा आता है ना, हिंदी भी आता है, आप लोगों को भी टिबेटन सीखना पड़ेगा, ठीक है। इनका प्रश्न है कि अनुवाद जब मैं ट्रांसलेशन करता हूँ दलाई लामा जी का, तो कैसे कर पाता हूँ, उसके लिए क्या समस्या है। तदी घरा के द्वेबा ले आ रही खड़े रेसना चिरतंगी ट्रांसलेशन ता गिलवा रिम्पोची सब चीज़ शुया थंबो इन्हें मिगुल खे मारे घरा नांबा इन बेचाने ता थंबो दी नांशो दी खंडे खंडे यो में दी जंगया छेदु ना धर्मशाला लोनी तो ना ले पाए तदी जेला बगे सारा थोलोग नावला चोइबा चोगी दुआ ता चोइबा डाल चो तंगे थंबो रे दी तो या लदी खंडे इना मेना तदी छे जंगोरे नांशो जंगोरे लागो तंगारा द्वेबा ले छे અને झंडाला छी नांदो रिबा झंडाला जोय छे અને लोबजोंग छे छोरा डोया मादो सिमिया तंटा मिला छे वो तो पे मांगो दुचो तांगो गुदु तदी जे लिया लो नी सुम सीस जेला गरा चितांग के फेगे दे तेसे जोकोडा सेंस बगे पे गिरिया इनाया मी की खोवाले आइना कारे सुमी ना इना इगे ता दाचा धंधा या नोरगो रे तिंगा तेन तेन धंधा या नोठुल पे मांगो सोर मिले खोआ ले आती काले में दोस्त मी खरे सुमियो ना नाम सा जो तो बिधा तो
तो दिन है बगे लोंबा मिंडावा शीन छे गेशे दा रिंबुशे दने ngara sabji suwe che dinde smangbo jons ne lo ni to chuchi ngina chuni dinde re insare ta page gane phota la ta hindi chik sungir chi gogi du tencha das gogi du kai sana gelwar bo che gyagal la khasa khala phe che ane yulmi di tak kora gochugi mendus indi inji yang gochugi mare phege da khawa yongya mare तंगा खाना खासों गिर दे बोले दिंगोला या मा दो छे बुचे ता दिंदे त लेखोंगे दुने नाल पगी दुस्का फे छे त थंगो छेना का फे न त खरा गिलवा रिम बुचे की सुंगिर सोगरे सना पैदंगा खरे लगोरता पैद शेष थंगो छेना गिलवा रिम बुचे की दिने सुंगिर से खवाय होंगे ने थेकर लग ही पगी तिल दिलावे हमारे गलवार मुझे पद तिंग सबो फेया दान दिन शिवट रोगिरो तंगाल दी होया बरा है हमारे योंगी रेस करना पे आपको छे के दोस्त मी दिन सोंग छे बगी तलस होता है ना ते अला तम्मा से रटे हमारे देयर वाज नो चॉइस आई चॉइस में तो गजवान कौन लागे गाला त प्रोग्राम जेरेम दे ना छे ता केरा दिल्ली डोगरे चिक डोगरे लाव सुलाइंदा थांबो तक नंगमिला फोन ता छे ता ती पेद ngala kale da shute so ta kharche bana sanga yo sa mare gelwar boje ki sumir so ya de sabe ne digo mare tonta mangpo ki nye bola nga nor na ya gelwar boje nor ko mare nga nor ko ta mi ki khare samgure sang gelwar boje nor bare sa na de pesa de ta ta degi mare sam yongi re sa na ta ga da chik che kang ta che ta chhe da den de skesi majang ba ina ta ta yongi mare dikha sunga pharchin लोरम शिवाय ना गाबा इंसारे दिचिक पेचा की घिउ दिस योरवा ओ दिचिक जहाँ छे अनि दुस स्टार्ट छे दिजला खाले रिम्बा ले छे उमा परचिन जो लासो पर मंगो रे अनि थालो बगे मासो रिमे गेसे लागो रे ता लो चोके निसुस दिने दुचो ता छे आ दुस ले परे ते छे संगा खरे लागो रे आई बिकम ट्रांसलेटर बाय चांस ना कांग चोने दे सन लेका छेया ढोगी सन थांगबो ने मेगियो ले मारे ना लोबजु छेगा ढोगी नांगसो जांगा ढोगी और दुस ले बरे त खांतर लो नि तो चुचिक चुनी ने धंधा भर दू अनि खाला खांचाम सब्जी सोया जोंग दिंग अरांगे खेपसा रे या मेना सोसो की सोनाम के ता ले के बांधो ले बरे लोबजो ता दी के खे के हमारे इसका समझ तो चलना Valuable insight from today's talk. Before we conclude, I, on behalf of the Pondicherry Settlement Welfare Office, would like to take this opportunity to sincerely thank school principal for graciously accepting our request and generously allowing us to organize this special talk session along with the exhibition here on the school premises. May I now request our servant, Mr. Gile Janla, to kindly present memento as a token of our heartfelt appreciation. Please welcome. Last but not the least, for the insightful talk. Thamadala Shri Kailash Chandraji Chone, Sushri Sabge China Wadala, some of the Hamamani Logi, Gere Lutri Yogi Sabshine, Kumani, Tachana Shui.